Okay, the name of the chapter that we are going to start, electricity. So जैसे मैं डिस्कस ऑलवेज चैप्टर का नाम से ही करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर? नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी. So you should know meaning of this term, electricity. Now, what is electricity? Simply, it is said to be flow of charges, or we can say flow of electrons. Flow of electrons, or we can say flow of charges. So this is called what? Electricity. Bhavna is saying that she cannot hear me, so there may be some problem from your side. You can do one thing, just exit and re-enter. Just exit and re-enter. So what we were discussing, the meaning of the term electricity. What is electricity? Flow of charges or flow of electrons. But electricity, this is also defined as, electricity is the branch of physics. You can note it down. Electricity is the branch of physics that deals with the study of charges. That deals with the study of charges. तो इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस अबाउट चार्जेस. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, flow of charges is called electricity, or you can define like this: the branch of physics that deals with the study of charges. And there are two branches of electricity. There are two branches of electricity. There are two branches of electricity. One is called statical electricity. One is called statical electricity, and other one is called current electricity. Statical electricity and current electricity. You note down everything from screen, huh? So what is electricity we have discussed, and what are the two main branches of electricity: statical electricity and current electricity. And you should know that statical electricity, it deals with the study of charges. It deals with the study of charges at rest. Statical word का मतलब ही rest है. So statical electricity is that branch of electricity which deals with the study of charges at rest, and current electricity, it deals with the study of charges in motion. Okay, तो अब तक सब कुछ clear होगा. If I ask you what is electricity, electricity is flow of electrons. Electricity is flow of charges. Electricity can also be defined as the branch of physics which deals with the study of charges. Now, if I ask you what are the two branches of electricity, statical electricity and current electricity. Statical electricity deals with the study of charges at rest, और current electricity deals with the study of charges in motion. क्लास 10 में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी. लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था अबाउट स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी, लाइक चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, लाइक दैट. तो वो सब था स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ हम लोग क्लास 10 में ज़्यादा फोकस करेंगे ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी. So is it clear to all of you the meaning of the term electricity and its branches? समझ में आ गया? Just inform me through your mic. Yes, sir. Yes, sir. You noted down everything. Sir. Screen पे जितना Yes, कुछ sir. दिखाई दे रहा है, have you noted down? Yes, sir. Okay. Yes, sir. I'm moving to another screen.
I'm erasing the screen. If you have not written, just take the screenshot. Later on you can write, and from the next screen onwards you should write with me so that आपके दिमाग में भी set होगा सब कुछ. So we discussed what is electricity. We discussed what is electricity and what are its two branches. And if I ask you, Aditya Tiwari, Yes, sir. if I ask you, what are the two branches of electricity? So statical electricity and current electricity. Good. And Aditya Bajoria, Yes, sir. if I ask you, what is electricity? Sir, electricity is the flow of electrons or charges. Okay, flow of electrons or flow of charges, or it can be defined as the branch of physics that deals Physics with that deals with the study of charges. good study of charges. तो ये चैप्टर में हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट चार्जेस. व्हाट वी हैव टू डिस्कस अबाउट चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने का मतलब चार्जेस के बारे में डिस्कस करना. तो अब हम लोग ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड अबाउट मीनिंग ऑफ द टर्म चार्ज. ओके, मीनिंग ऑफ द टर्म चार्ज. मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप क्लासरूम में एंट्री करने का कोशिश करोगे विथ इम्प्रॉपर नेम, आपका मोबाइल का नेम, आपका मतलब प्रॉपर नेम अगर नहीं होगा, स्टूडेंट नेम मेरा लिस्ट में जो है अगर वो नहीं होगा तो क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा. अभी कोई ट्राई कर रहा है रेडमी एंटर्ड, ट्राइंग टू एंटर इनटू द रूम, लेकिन एंट्री नहीं मिलेगा. सो फॉर दैट यू हैव टू एंटर इनटू द क्लासरूम विथ योर प्रॉपर नेम. तो मैं जस्ट इन्फॉर्म कर देता हूं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को. Now we can continue. उस स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिला है. So in this chapter we are going to discuss about charge. So you should know the meaning of the term charge. You know that all bodies are made up of either atoms or molecules or ions. तो अगर किसी भी बॉडी में एटॉम्स है, मॉलिक्यूल्स है और आयन्स है, तो जितना आयन्स का केस में जितना भी पॉजिटिव आयन होगा उतना नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव. तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल बॉडीज आर, दे आर न्यूट्रल. दे आर व्हाट? न्यूट्रल. The bodies are neutral. Okay. If a neutral body, if it loses electrons, वो एटॉम भी हो सकता है. क्या आप बता सकते हो वो कैसा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. It is neutral. If it loses electron, it will acquire positive charge. It will acquire positive charge. And if a body is neutral, and if it gains electrons, it will acquire Negative charge. Negative charge. it will acquire negative charge. So एक बॉडी चार्ज कब होता है? क्या चीज ट्रांसफर होने से चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर या न्यूट्रॉन ट्रांसफर? इफ आई आस्क Electron. इलेक्ट्रॉन. Electrons. इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होता है एटॉम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल से? कोई बता सकता है? Why only electrons get transferred from one atom to another? कोई रीजन पता है? Anyone? The reason is that electrons are located where in an atom? They are present in the orbits. और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. तो एक एटॉम से कौन सा पार्टिकल का ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का? Electrons. क्या कौन सा पार्टिकल? इफ आई आस्क यू. Electrons. Electrons. तो a neutral body on losing electron becomes positively charged. A neutral body on gaining electron becomes negatively charged.
तो इसी कंडीशन में बॉडी को चार्ज बोला जाता है। न्यूट्रल, जब बॉडी न्यूट्रल था उस वक्त प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होगा। न्यूट्रल होने से प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होगा। और पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज हो गया दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन। तो अब इस कॉन्सेप्ट से मैं चार्ज का डेफिनेशन दे सकता हूं। A body, you can note it down, a body is said to be charged. A body is said to be charged if it has excess or deficit of electrons. Excess or deficit of electrons, then its normal state. Then its normal state. So, have you understood the definition? If I ask you under what condition a body is said to be charged, a body is said to be charged if it has excess or deficit of electrons than its normal state. Have you understood? आपको समझ Yes, में आया sir. है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Sir. So if I ask you what are the two types of charges? Sir, positive and negative. Good. Two types of charges बोलने से the two types of charges, one is positive charge and other one is negative charge. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कब बोलते हैं? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों है? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इसमें डेफिसिट हो गया। सो अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड इफ it has deficit of electrons. If it has deficit of electrons, then its normal state. Then its normal state. A body is said to be negatively charged if it has excess of electrons. If it has excess of electrons, then its normal state. So if I ask you what are the two types of charges, is it clear now? What are the two types of charges? Positive charge and negative charge. A body is said to be positively charged if it has what? Deficit of electrons, then its normal state. A body is said to be negatively charged if it has excess of electrons, then its normal state. और बॉडी को चार्ज कब बोलेंगे हम लोग? A body is said to be charged if it has excess or deficit of electrons, then its normal state. Have you understood everything? Just note it down and raise your hand to confirm. Just note it down and raise your hand to confirm. Done? Yes, Have you sir. completed? Yes, sir. Sir. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? What is electricity? Then we discussed what do you mean by the meaning, what do you mean by the term charge, or under what condition a body is said to be charged? और हम लोगों ने डिस्कस किया about types of charges. और चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट कोई बता सकता है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? Lom. Coulomb. COULOMB. Coulomb is the SI unit of charge. और आपको साथ साथ में इसका स्मॉलर यूनिट्स भी जानना चाहिए। उसमें एक बहुत कॉमनली यूज होता है माइक्रो कुलॉम। 1 माइक्रो कुलॉम just wait.
1 microcoulomb is equals to 10 to the power minus 6 coulomb, और माइक्रोकुलॉम को इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, म्यू सी माइक्रोकुलॉम. 1 microcoulomb is 10 to the power minus 6 coulomb. So if I ask you, what is the SI unit of charge? SI unit of charge is coulomb, and 1 microcoulomb is equal to 10 to the power minus 6 coulomb. So have you noted down the things? सबका कंप्लीट हो गया? You will have to respond. Yes, Okay. किसी का कंप्लीट नहीं होने से बता देना. I am moving or I am erasing the screen. Is it completed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we discussed two important terms till now. What is electricity and what is charge? And what is the SI unit of charge? Now I'm going to discuss some important points. The first point here, you know that metals are good conductors of electricity. सबको पता है metals are good conductors of electricity. बट आप में से कौन हमको ये बता सकता है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर यूज होता है वो इलेक्ट्रिकल वायर मेनली कौन सा मेटल का होता है? एनी वन ऑफ यू? Copper. Copper. कॉपर, दैट वन इज कॉपर. और आप जो रोड में ओवरहेड वायर जो देखते हो पोल्स पे, वो कौन सा मेटल का होता है जनरली? किसी को आइडिया है? दैट वन इज एल्यूमिनियम. क्या? एल्यूमिनियम. और आपको ये पता विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? Sir, gold. Which metal is the best conductor of electricity if I ask you? Gold. Silver. Silver का symbol है Ag. Okay. So now question here, electricity में यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? Metals are good conductors of electricity because of the presence of free electrons. Because of the presence of free electrons. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको. मेटल एटॉम ये है समझो, और इसका न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इसका ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स. ये समझो आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड द इलेक्ट्रॉन इज देयर. मेटल एटॉम्स का एक टेंडेंसी होता है, मेटल एटॉम्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन. मेटल एटॉम्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता है. सो मेटल एटॉम कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये समझो एक मेटालिक रॉड है और उसमें बहुत मेटल एटॉम्स होंगे, और सभी मेटल एटॉम्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उस एटॉम को छोड़ के जाना चाहता है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है. In that case, what happens in this metallic conductor? Some electrons become free to move. जो outermost shell के electrons है वो atom से बाहर आ जाते हैं, and they start moving randomly here and there. वो उस conductor में इधर उधर move करते हैं, and these electrons are called what? Free electrons. These electrons are called what? Free electrons. And because of the presence of free electrons, metals are good conductors of electricity. So any doubt? सर ये वाला प्रॉब्लम समझा देंगे क्या? समझा नहीं. आवाज थोड़ा ज्यादा बोलो, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से. सर और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. एक बार और एक्सप्लेन करना है, ठीक है. मैं यहाँ समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैंने बताया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रीजन क्या दिया मैंने? प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है क्या है वो आपको समझने का यहाँ पे कोशिश करना है. दिस वन इज सपोज टू बी मेटल एटॉम, और मैंने आपको समझा कि मेटल एटॉम्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सभी होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स और शेल्स,
The electron which is present in the outermost shell of metal atom, it is loosely bonded or attracted by the nucleus. इतना ज्यादा attraction नहीं होता. तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल, उसका न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से कभी कभी वो एटॉम, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, मतलब मेटल एटॉम से बाहर आ जाएगा. तो मेटेलिक कंडक्टर, समझो ये रॉड है, ये कॉपर वायर है, या समझो कौन सा वायर, कॉपर. तो कॉपर वायर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर, और यही इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर को बनाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes. Okay, ऐसा मैं एक रूल बता देता हूँ. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं 2 बार समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आए, तो आप 3rd टाइम भी पूछ लेना. थोड़ा बेशरम होना पड़ता है ट्यूशन करने से, और क्वेश्चन पूछना चाहिए. तो अभी मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, Now, sir. if it is asked why are metals good conductor of electricity, तो आपका आंसर क्या होगा? Because they have free electrons. They have free Because of electrons. the presence of free electrons. Okay. तो they have free electrons. और एक बात आपको पता है क्या, कि अगर मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे तो उसमें करंट डेवलप हो जाता है. डू यू नो दैट? हैव यू हर्ड दैट? अगर मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट कर दे, देन इट डेवलप्स करंट. लेकिन इस कॉपर वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन उसमें करंट क्यों नहीं होता? इसमें करंट, कॉपर वायर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग हियर एंड देयर, तो इसमें करंट भी होना चाहिए था. इसमें करंट तो है नहीं. इसमें करंट क्यों नहीं है, उसका एक रीजन दिया जाता है कि एट एनी मोमेंट the number of electrons which are moving towards right is equal to the number of electrons which are moving towards left. मतलब राइट साइड में जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है किसी मोमेंट में, उतना ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में भी आ रहा होता है, और दोनों अपना चार्ज को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, एंड देयर बाय नो करंट फ्लोज इन मेटेलिक कंडक्टर इवन द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग or electrons are in the state of motion in the conductor. कुछ समझ में आया? Have you understood? Yes, sir. ठीक से नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ. तो समझा दीजिए ना सर. Okay. So यहाँ मैं बोल रहा था कि when electrons flow, current flows. When electrons flow, current flows. तो यहाँ कॉपर वायर में electrons are moving. They are moving randomly here and there. तो इस कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से करंट तो होना चाहिए था, बट देयर इज नो करंट. एक वायर में, कॉपर वायर कहीं पे पड़ा हुआ है, उसमें तो करंट होता नहीं है. उसमें करंट क्यों नहीं होता? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहता, फिर भी करंट नहीं होता. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट देयर इज नो करंट. द रीजन इज दैट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी मोमेंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स राइट is equal to the number of electrons which are moving towards left. तो वो charges को neutralize कर देंगे. So total effect of the charge will be 0, and thereby current is not developed even if electrons are moving. बात समझ में आया? Yes sir. मेटेलिक Yes, वायर sir. में फ्री इलेक्ट्रॉन्स Yes, sir. होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन करंट फ्लो नहीं होता. आपको करंट फ्लो करवाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये मेटेलिक वायर है. अगर आप इस मेटेलिक वायर का दोनों एंड को एक सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे, वन एंड विल बिकम पॉजिटिव, अदर एंड विल बिकम नेगेटिव, एंड यू नो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. पता है आपको ये? डू यू नो दैट फ्रॉम क्लास 9 इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज? तो जितना भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने लग जाएगा? पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? Positive. पॉजिटिव. Positive. क्यों पॉजिटिव साइड जाएगा इलेक्ट्रॉन्स? Why electrons will move towards positive side? Because electrons are negative and negative particles are attracted by positive terminal. Do you know that?
आपको ये तो पता ही होगा, एटॉम में इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है. Electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons, they are neutral, they don't have any charge. So when we connect a cell, what happens? The electrons start drifting towards which terminal? Positive. Why they are drifting towards positive terminal? Because electrons are negatively charged particles. Have you understood this? और इस केस में जब हम लोग बैटरी या सेल लगाते हैं तब उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है. लेकिन नॉर्मली इस कॉपर वायर में करंट फ्लो होता है क्या? नहीं होता, लेकिन साइंटिफिकली होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. इलेक्ट्रॉन का मोशन होने से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो होने से करंट फ्लो होना चाहिए. लेकिन यहां मैंने आपको एक बात समझाया कि करंट यहां डेवलप क्यों नहीं होता. एट एनी मोमेंट the number of electrons which are moving towards left is equal to the number of electrons which are moving towards right. So total effect will be 0, and thereby there is kya? No current. Have you understood this explanation, this part? Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो अगर मैं Yes, आपसे sir. पूछता हूँ why are बैटरी metals लगाया good था तब conductor वाला of नहीं समझा। electricity? If I ask you why are metals good conductor of electricity? Presence of free electrons. Because of the Because of presence of presence free of free electrons. electrons. और ये स्क्रीन में जितना भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो. अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो. दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सर मनन ये ने वाला एक बार वापस समझाइए ना, जब हम लोग बैटरी लगाया था इसमें मेटल में. बैटरी लगाना, आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है. बैटरी लगाने वाला बात वापस समझना आपको. यस सर. ओके, मैं थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन में. हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट फॉर दिस पर्टिकुलर स्क्रीन? Yes, sir. Should I move to the next one? Yes, sir. Okay. So we were discussing that metals are good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity because of the presence of free electrons. The electrons which are moving randomly here and there in the metallic conductor. लेकिन जब हम एक सेल लगा देते हैं across the two ends of the metallic conductor, एक बैटरी लगा देते हैं, ये सिंबल है सेल का, दो पैरेलल लाइन, ये रिप्रेजेंट करता है सेल को. यहाँ एक प्लग की स्विच जैसा, इसको ऑन कर देने से करंट फ्लो होगा. लेकिन उस केस में होता क्या है? दिस एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री था. फ्री मतलब मूवेबल था. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करने लग जाएगा? किस तरफ ड्रिफ्ट करने लग जाएगा? बता दो आप. So positive. Positive. क्यों terminal. पॉजिटिव? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल. और जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सेक्शन से अगर मूव कर रहा है थ्रू द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का मतलब चार्ज इज फ्लोइंग. व्हाट इज फ्लोइंग? चार्ज. द रीजन इज दैट ईच इलेक्ट्रॉन कैरीज सम अमाउंट ऑफ चार्ज. किसी को एग्जैक्ट वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एनी वन ऑफ यू? Charge of one electron, if I ask you? Sir, minus 1.6 into 10 to the power minus 19. Minus 19 coulomb. Good. Minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is the charge of one electron. तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो करना. एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस सेक्शन से T टाइम में फ्लो करता है, इसी को करंट बोलते हैं हम लोग. करंट का मतलब यही होता है. इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी किसी भी कंडक्टर का किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर चार्ज फ्लो होगा, सपोज Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन T टाइम, तो हम लोग बोलेंगे वहां से करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो होना. बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो यहाँ मैं अभी करंट का डिस्कशन नहीं करके मेरा फोकस ज्यादा इस पे है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
because of the presence of free electrons. Have you understood that particular topic? सबको Yes, समझ में आ गया? और ये बैटरी वाला डाउट क्लियर हो गया आपका, बैटरी सेल वाला? यस सर। ओके, बैटरी और सेल वाला डाउट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव कर सकते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको जो भी स्क्रीन पे मैं लिखता हूं उसको नोट डाउन करते रहना आप, और साथ साथ में जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे करते हो वैसे ही करते रहना है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बस डिफरेंस ये है कि वहाँ मैं फिजिकली सामने होता हूँ, और ये और ज़्यादा कन्वीनियंट होना चाहिए आप अपने घर में, और आराम से बोर्ड वही दिखाई देता है जो मैं वहाँ बोर्ड में लिखता हूँ, सेम चीज़ यहाँ पे होता है। बट वहाँ और यहाँ क्या क्या डिफरेंस होता है मेनली, कोई बताएगा मुझे? आप कोई डिफरेंस फेस नहीं करते ऑफलाइन और ऑनलाइन में? कुछ नहीं, तो आपके लिए सब सेम है। ऑनलाइन में कॉमेडी, ऑनलाइन आवाज कम आ रहा आपका। सर ऑनलाइन क्लासेस में आप कॉमेडी नहीं करते हैं। वाह, कॉमेडी क्यों नहीं करता बताया था हम शायद। कॉमेडी ज्यादा नहीं करने का रीजन है, फिर पेरेंट्स बोलने लग जाएंगे कि सर तो टाइम पास करता है, लाइक दैट। लेकिन कॉमेडी जरूरी है, पता नहीं पेरेंट्स लोग को फिर लगता है ना, अलग लगने लग जाएगा। यहाँ कॉमेडी, आपके बगल में पेरेंट्स बैठ जाएंगे, बोला आज सर का कॉमेडी सुनते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ओके, नाउ हम लोग मूव करते टू अनदर टॉपिक। अगर मैं आपको पूछता हूं दैट सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, bases and salts, are they good conductors of electricity? Solutions of acids, bases and salts, are they good conductor of electricity? वैसे हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसमें थोड़ा एसिड या फिर थोड़ा बेस या फिर थोड़ा सॉल्ट मिला दो तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। तो अब मैंने तो आंसर बता दिया है, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट रीजन क्या है? रीजन ये है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मूवेबल आयंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मूवेबल आयंस। आ रहा है समझ में? मूवेबल आयंस, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक वेसल में वाटर है और आपने उसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स कर दिए। सोडियम क्लोराइड जैसे ही आप वाटर में मिक्स करते हो, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट टू फॉर्म सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, और ये आयंस फ्री हो जाता है। These ions are free to move and these movable ions make them good conductor of electricity. Okay, so अगर आपको पूछा जाए solutions of acids, bases and salt, are they good conductor of electricity, आपका आंसर होगा yes। लेकिन अगर आपको पूछा जाए why they are good conductor of electricity, why the solutions are good conductor of electricity, तो उसका आंसर होना चाहिए because of the presence of what, electrons नहीं है यहाँ पे because of the presence of what, movable ions। Is it clear? Yes, sir. Okay, just note it down. Just note it down. तो आज हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कशन किया है? पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट आर द टू ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट चार्ज, देन टाइप्स ऑफ चार्जेस, फिर हम लोगों ने फोकस किया ऑन द टॉपिक व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाई आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मूवेबल आयंस। और आयंस के बारे में आप लोग को ऑलरेडी नॉलेज होना चाहिए। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री। अब मैं जो डिस्कशन करने वाला हूं दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने थोड़ा ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है। We discussed that metals are good conductors of electricity. We discussed that metals are good conductors of electricity because of the presence of क्या? Because of the presence of anyone? Free electrons. Free electrons.
And if I connect the two ends of the conductor to a cell or battery, then one end of the conductor develops positive charge, other end develops negative charge. Okay, जब हम लोग एक सेल के साथ कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर का एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाने लग जाएंगे। बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना स्टार्ट हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का मतलब चार्ज का फ्लो करना। कितना चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो करना, और इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो कर रहे हैं? थ्रू दिस कंडक्टर। तो ये समझो एक क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन समझ में आता है आपको? क्रॉस सेक्शन समझ में आता है? अगर मेरे पास ये पेन है, देखो ये पेन, ये हॉराइजेंटल मैंने रखा हुआ है। अगर इस पेन को मैं 90 डिग्री एंगल से एक नाइफ से ऐसे काटना स्टार्ट कर देता हूं, इफ आई स्टार्ट कटिंग लाइक दिस, तो इसका चिप्स जैसा कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं? तो वो एक एक चिप्स आप समझ लो एक क्रॉस सेक्शन है। या फिर इस पेन का ये वाला एंड से ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये सर्कुलर सेक्शन, दैट वन इज द क्रॉस सेक्शन। तो अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ से कट कर देता हूं तो जो सेक्शन बनेगा दैट सेक्शन इज सर्कुलर एंड दैट सेक्शन इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। मैं काटूंगा नहीं, लेकिन ये इमेजिनरी है। दैट सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से चार्ज फ्लो होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से क्या फ्लो होगा? चार्ज, बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन कैरी सम अमाउंट ऑफ चार्ज। एंड चार्ज फ्लो अगर होगा एक कंडक्टर से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब इस वायर में, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लग गया। तो करंट फ्लो का डायरेक्शन इस सर्किट में किस तरफ देना चाहिए मुझे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? नेगेटिव टू पॉजिटिव देना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट का डायरेक्शन बाय कन्वेंशन पहले से लिया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। गलत है कि नहीं ये? हेलो, इफ आई आस्क यू, ये आपको रॉन्ग लगता है या राइट? इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या है? मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है? नेगेटिव टर्मिनल से किधर? पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट का डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग लगता है कि नहीं आपको? लगता है। हाँ ना, तो बोलो। हाँ सर। हाँ, और ये रॉन्ग है भी। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट हम लोग अभी भी यूज करते हैं। हम लोगों ने इसको करेक्ट नहीं किया। इसको करेक्ट करने का मतलब है आपको फिजिक्स में बहुत कुछ बदलना होगा। तो ये गलती मान के ही चला जा रहा है। ओके, ये गलती हुआ कैसे? साइंटिस्ट लोग को पहले लगता था कि ये जो कंडक्टर है इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। कौन सा चार्ज फ्लो करता है? अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा तो किधर करेगा? फ्रॉम पॉजिटिव से किस तरफ? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। तो उन लोग का ये कॉन्सेप्ट था। बाद में ये कॉन्सेप्ट पता चला कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, और इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। गलती हो गया, बहुत देर हो गया। तब तक फिजिक्स में बहुत लॉज एंड रूल्स उस कॉन्सेप्ट में बन चुका था। कौन सा कॉन्सेप्ट में? कौन सा कॉन्सेप्ट में? पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट में। इसी कॉन्सेप्ट में कि पॉजिटिव पार्टिकल फ्लो होता है। सो बाय कन्वेंशन इसको बोला जाता है कन्वेंशनल डायरेक्शन। क्या बोला जाता है इसको? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप सर्किट में क्या बोलोगे? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स नेगेटिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। किस तरफ फ्लो करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपको किसी भी सर्किट में करंट का डायरेक्शन अगर दिखाना है तो आप कौन सा डायरेक्शन दिखाओगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव। गुड। करंट का डायरेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव, Negative. लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होता है? Negative to positive. Negative to positive. Positive. Have you understood this concept? Yes, sir. सबको समझ में आ गया? Yes, आज sir. का क्लास में अब तक ये जो मैंने डिस्कशन किया एकदम फाउंडेशन है। आज का क्लास अगर आपको समझ में आ जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझाना मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट होगा। मैंने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ? क्या क्या डिस्कस किया? इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, why are metals good conductor of electricity, why are solutions of acids, bases and salt good conductor of electricity. Then we discussed about the direction of current in an electric circuit, direction of current in an electric circuit. और एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन मैं यहाँ साथ में कर देना चाहता हूँ। अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ऐसा क्वेश्चन, how many electrons make 1 coulomb of charge? कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएगा? दे विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक। सो इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना हम लोगों को, जस्ट लुक एट हियर। हम लोग जानते हैं कि 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge is constituted by कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge is constituted by how many electron? कुछ तो बोलो, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करने से मुझे लगेगा 1 electron. 1 electron. 1 इलेक्ट्रॉन। सो इतना कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना सफिशिएंट है। मैं आपको एक दूसरा चीज यहाँ पे पूछता हूँ साथ में, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, कैसा कंडीशन में है? न्यूट्रल। अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इफ इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कितना चार्ज डेवलप होगा बता सकते हो आप? अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसमें चार्ज डेवलप होगा, अच्छा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? इफ इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, Positive. और वो चार्ज होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और एक अगर न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, और वो न्यूट्रल बॉडी इफ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस बार उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज? Negative. Negative. नेगेटिव चार्ज होगा माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so if a body loses 1 electron, it acquires positive charge and the magnitude of charge will be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If a body gains electron, then it develops negative charge. Magnitude of charge will be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि एक न्यूट्रल बॉडी, ओके, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करने से बॉडी में 1 कूलम चार्ज डेवलप होगा? कितना कूलम चार्ज? 1 कूलम। तो हम लोग यही फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से 1 कूलम चार्ज डेवलप होता है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज? सो इफ आई आस्क यू ट्रांसफर ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge will, okay, तो सॉरी, ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन विल डेवलप हाउ मच चार्ज? 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज डेवलप कर सकता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे यूज किया और क्या लिखा मैंने? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge is constituted by 1 electron. Therefore, 1 coulomb of charge is constituted by कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। और आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने से आपको मिलेगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना आएगा? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इसको सॉल्व करके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, वहाँ स्पेस प्रॉब्लम है। सो कैलकुलेशन इधर देख लो आप। मैं लिख सकता हूँ 1.1 by 1.6 into 10 to the power 19। फिर मैं क्या करता हूँ, 10 to the power 19 से एक 10 को यहाँ ले आया,
10 by 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18, और यहाँ पे 100 by 16 हो गया इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप 100 by 16 ये डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। सो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ समझ में आया? Yes, sir. तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी Electrons make इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आंसर क्या होगा? 6.25 into 10 to the power 18 ओके, electrons. अब यहाँ पे फोकस करो। दिस इज ए न्यूट्रल बॉडी। इसको कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करना है 1 कूलम डेवलप करने के लिए? 6.25 into 10 to the power 18. गुड, 6.25 into 10 to the power 18। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतना इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इतना इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होना चाहिए? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया? Sir. कोई डाउट है Yes, किसी को? कोई भी डाउट? No, थोड़ा sir. चैप्टर डिफरेंट है चैप्टर, इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर शुरू किया मैंने, और बहुत मजा आने वाला आपको। मैं कल तक आपको मटेरियल भी दे दूंगा, आप फर्स्ट और सेकंड पेज या एक ही पेज मैंने अभी डिस्कस किया, उसको रीड करके रख लेना आप। और ये क्लास मैंने रिकॉर्ड भी किया है, तो शायद इसका लिंक मैं बाद में प्रोवाइड करूंगा, अभी नहीं, ये टाइम लगेगा, ठीक है? तो वो आपको बाद में मिल सकता है, लेकिन आपको